Let's start the lecture with question number 15. A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. Find A. The total distance covered by the train. B. The maximum speed attained by the train. And C. The position inside the bracket S is given so that if required we can make it plural also. Find the positions of the train at half the maximum speed. Okay sir, so let me consider students that for this particular train journey is starting from point A. Okay, then at point A the velocity is 0. It is given that the train is starting from rest. Okay, it is moving from A to some position. Let me consider that position as B. Okay, and there is acceleration A is equals to 2 meter per second square. Train is moving from A to B for how much time, sir? For half a minute. Let me consider that time as T, which is definitely 30 seconds. Okay, so this is part 1 of the entire journey of this train. Then once the train is reaching at this point, at this position, brakes are applied. So यहाँ से retardation start हो जाएगा. Okay sir, आगे सुनते हैं. The train comes to rest in 1 minute. So this time is sir 1 minute, which is 60 seconds. Yes sir. We have to find out lot of things over here. Task A sir. Okay. Task A. The total distance moved by the train S is the distance. So total distance sir is equals to question mark. Next sir. The max speed attained by the train V max is a question mark. Part C sir. The position inside the bracket जो मैं आपको कह रहा था S दिया है. Okay sir, the position or the positions of the train at half the maximum speed. So position आपको ढूंढने हैं when V is half as compared to V max. Yes sir. So when V is half of V max, positions क्या होंगे? Okay sir. So from A to B journey जो है students, there is acceleration and जब वो train B पे पहुंचा, okay, brakes are applied. So let me consider train is moving from B to C after application of brake. So for sure there will be retardation. So ये A1 consider कर लूँ मैं, acceleration for part 1 of the journey. A1 2 meter per second square. A2 sir, retardation. Definitely brakes are applied from B to C. So A2 is the retardation which is part 2 of the journey. Okay. Now can I say students, train starts from rest, it is ending at rest eventually. Yes sir. So first जो time है वो 30 seconds है, second जो time है वो 60 seconds है. तो first time के comparison में second time is 2 times. So can I say the retardation का magnitude will be half as compared to that A1. So A2 will be -1 meter per second square. Students, are you following this? A1 2 है तो A2 को देखिए, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस इज बाय डिफॉल्ट, ये आप भी जानते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये 30 सेकेंड्स है, ये 60 सेकेंड्स है, तो टाइम ज़्यादा लगा ना, मतलब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है. टाइम डबल लगा, और स्पेसिफिक बात करता हूँ मैं, टाइम डबल लगा तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ है. बेटा इनकेस आपको ये मेरा लॉजिक पसंद नहीं आया सो डेफिनेटली आप इसको काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके चेक कर सकते हो. ओके, आपको समझा बेटा ये पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या चल रहा है. P1 पार्ट 1 ऑफ द जर्नी, P2 पार्ट 2 ऑफ द जर्नी, A to B पार्ट 1, B to C इज पार्ट 2. ब्रेक्स लगाए सो ट्रेन जो है वो C पे रेस्ट पे आया. सो VC वेलोसिटी एट C इज इक्वल्स टू 0. आई थिंक वेलोसिटी एट B विल बी कॉमन इन बोथ द पार्ट्स. ऑब्वियस है ना सर. सो व्हाट आई एम डूइंग सर, first of all I am calculating VB. Sir, I am considering part of the journey from A to B. I am using kinematical equation number 1 for part 1 sir. V is equals to U plus AT. So velocity at B equals velocity at A
प्लस a1 t1, आप समझे स्टूडेंट्स ये, v इज इक्वल टू u प्लस at, u इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर जर्नी a to b, इनिशियल इज एट a. अच्छा सर, व्हाट इज वेलोसिटी एट b, दैट वी हैव टू फाइंड. सर व्हाट इज वेलोसिटी एट a, 0. सर व्हाट इज a1 इज 2. सर व्हाट इज टाइम 1, 30 seconds. सो टोटल शुड बी 60 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी एट b आपको मिल चुका सर, vb 60 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी एट b सर 60 मीटर पर सेकेंड. ओके, इतना समझा स्टूडेंट्स आपको. सो 60 मीटर पर सेकेंड is final velocity for part 1 and the same 60 meter per second is the initial velocity for part 2. okay, yes students, रही बात आपके वो एक्सीलरेशन वाले स्टेप की. ओके, मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ. फॉर पार्ट 2 ऑफ द जर्नी सर, B to C. ओके, आप क्या करिए सर, आप काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लीजिए. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. फिर से, बट इस बार v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट c इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट b प्लस a टाइम्स ऑफ t, a2 t2. यस सर, व्हाट इज vc सर, वेलोसिटी एट c इज 0. सर व्हाट इज वेलोसिटी एट b, इट इज 60 मीटर पर सेकेंड प्लस सर व्हाट इज a2 जो आपको कैलकुलेट करना था, व्हाट इज t2 सर, t2 इज 60. नाउ स्टूडेंट्स यू नीड 0. So 60 minus 60 can give you 0. So A2 should be -1. A2 should be -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो हमने लॉजिक से सोचा ना स्टूडेंट्स, सेम थिंग हमने आपको रिसेंटली प्रूफ करके दिखा दिया यूजिंग योर काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 1 फॉर जर्नी B to C. यस, इतना समझा स्टूडेंट्स आपको. नाउ लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वन बाय वन. सर टोटल मुझे डिस्टेंस ढूंढना है. सो टास्क ए ऑफ दिस क्वेश्चन, I will calculate sir distance travelled in part 1 using kinematical equation number 2. S is equals to ut plus half at square. So S is equals to ut मतलब velocity at a multiplied by t plus half a is I think we have considered a1. S is equals to ut plus half at square, so t1 square. So what is velocity at a, 0. So va into t is 0 plus half. Sir what is a1, 2. Sir what is t1 square, that's 30 square students. Okay, so this can be considered as 2 is getting cancelled, 900 sir. So S1 is 900 meters sir. Okay, so distance travelled in part 1 of the journey is 900 meter. What next? Same equation, same kinematical equation number 2, but this time for this journey B to C sir. Okay, S is equals to ut plus half at square. So what is S? S2 is equals to ut. सर इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है बिकॉज आई एम कंसिडरिंग पार्ट ऑफ द जर्नी B to C. सो वेलोसिटी एट B इंटू टाइम t2, S is ut ना सर, प्लस हाफ a t स्क्वायर. A is सर a2, t is सर t2. ओके सर व्हाट इज VB, वेलोसिटी एट B, टेल मी, दैट्स 60. सर t2 प्लीज, 60 plus half. Sir what is a2 minus 1. Okay, t2 square, t2 square. Sir what is t2, 60. So I am making it 60 square. Okay sir, so guys this is 60 square minus half of 60 square. That should give you half of 60 square. Yes sir, 60 square minus half of 60 square, that should give you half of 60 square. Sir what is 60 square, 3600. Make it half, that's 1800 sir. So S2 will be 1800 meters sir. S2 distance travelled in part 2 of the journey is 1800 meter. So sir आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं अभी S total का. टेल मी, it is S1 plus S2 total distance travelled in the entire journey sir. This is 900 meter and this is 1800 meter. So total, yes sir, 2700 meter. This is answer for your task A. Okay, sir what is V max? ये तो directly आप कर सकते हैं because in part 1 of the journey sir velocity is going from 0 to 60 because of the acceleration, and then B to C there is retardation, so velocity is going from 60 to 0. So for sure V max is 60 meter per second. Yes sir, what is V max sir, that's
60 मीटर पर सेकेंड। यस सर, ये डायरेक्टली आपको मिल गया। व्हाट नेक्स्ट? पोजीशन और पोजीशंस व्हेन v इज हाफ ऑफ v मैक्स। सो सर टास्क सी के लिए आपको एफर्ट्स डालने हैं अभी। सर कैन आई से यहाँ पे v होगा 30 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज v मैक्स इज 60 ना, उसका हाफ क्या होगा 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ कैन आई से स्टूडेंट्स, इन पार्ट 1 ऑफ द जर्नी वेलोसिटी इज गोइंग फ्रॉम 0 to 30 मीटर पर सेकेंड। सर वाई 30? बेटा v इज हाफ ऑफ v मैक्स ना, व्हाट इज v मैक्स 60, उसका हाफ चाहिए आपको, सो 30, सो 0 से 30। सो पार्ट 1 ऑफ द जर्नी में सर वेलोसिटी विल बी फ्रॉम 0 to 30, ओके। एंड देन पार्ट 2 सर, पार्ट टू बेटा एक सेकेंड, दिस 0 to 30 इज पार्ट ऑफ द पार्ट 1, आप समझे ना ये? एक मिनट, हेलो 0 to 60 इज द होल पार्ट 1। सो ये जो 0 से 30 है सर, दिस इज अ पार्ट ऑफ पार्ट 1। अरे पूरा जर्नी नहीं है सर वो, ओके। एक मिनट, एंटायर जर्नी बताइए आप मुझे पूरे क्वेश्चन का, A to B to C। व्हाट इज पार्ट 1 ऑफ द जर्नी A to B? सो ये जो 0 to 30 है, ये पार्ट 1 का एक पार्ट है, क्योंकि 60 पे थोड़ी जाना है सर, आपको तो 30 पे ख़त्म करना है ना। सो 0 से 30 कहीं पे हुआ होगा, उसके ऊपर आपको सॉल्विंग करना है। सर पार्ट 2 में क्या हो रहा है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ जर्नी B to C, इस बीच में वेलोसिटी देखिए 60 से स्टार्ट तो हो रहा है एंड इट इज़ एंडिंग एट 0। तो क्या सर आपको 0 तक जाना है? नो सर, एज पर दिस रिक्वायरमेंट आपको हाफ ऑफ v मैक्स तक जाना है, दैट मीन्स आपको 30 तक जाना है सर। सो 0 to 30 विल हैपन समवेयर इन बिटवीन ऑफ पार्ट 1 ऑफ द एंटायर जर्नी, एंड सर 60 to 0 हो रहा है पार्ट 2 में, आपको 60 से 30 के लिए ही सॉल्व करना है, ओके। तो क्या वेलोसिटी एट बी 30 है? नो सर। तो आपको क्या करना है, दिस इज 1 पार्ट ऑफ पार्ट 1 एंड दिस इज 1 पार्ट ऑफ पार्ट 2। ये पूरा पार्ट 2 नहीं है सर, पार्ट 2 क्या है पूरा 60 to 0। आप थोड़ी 60 to 0 के लिए सॉल्विंग कर रहे हैं सर, आप तो 60 से 30 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये समझा स्टूडेंट्स आपको रिक्वायरमेंट क्या है? अभी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना आपको? यस, सो फॉर श्योर अभी आपको पता चल गया है कि ये प्लूरल फॉर्म है, बिकॉज पार्ट 1 में एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, पार्ट 2 में भी एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा सर। सो वेलोसिटी कितना करना है सर आपको? 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज गोइंग टू हैपन टोटल हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स इन योर एंटायर जर्नी A B C, ओके। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको पोजीशन ढूंढना है, सो यू कैन यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 1 सर। यस सर, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ET स्क्वायर, ओके। आप मुझे बताइए ना सर, अच्छा एक काम करते हैं ना, 0 से 30 जाना है ना, सो वी ट्राई टू यूज वन इक्वेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना। आई थिंक थर्ड इक्वेशन इज बेस्ट सर, क्विकेस्ट वे इज इक्वेशन 3, है ना। v स्क्वायर, टेल मी स्टूडेंट्स, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इज द डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक रिसेंटली हमने s1 s2 कंसिडर किया था, कंफ्यूजन ना हो, सो आई एम यूजिंग सम डिफरेंट डिनोशन x, लेट मी कंसिडर दिस एज x1 सर। सो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट मीन्स वेलोसिटी फाइनल इज 30, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज 0, यस सर, प्लस 2a is a1 सर, एक्सेलरेशन x1 इज योर रिक्वायरमेंट। सो सर दिस इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर सर 0 स्क्वायर प्लस 2 सर, व्हाट इज a1 2 सर, व्हाट इज x1 आई डोंट नो। सो दिस इज सर 30 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर ना, x1 क्या होगा सर 30 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर विच इज 15 स्क्वायर सर। सो दिस डिस्टेंस, दिस पोजीशन विल बी 225 मीटर। सो पोजीशन नंबर 1 सर, x1 इज 225 मीटर, ओके। पार्ट 1 में एक बार ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होना है, ओके। व्हाट अबाउट पार्ट 2 सर? सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 3, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। टेल मी सर, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर सर 30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर 60 स्क्वायर प्लस 2a sir, what is the acceleration? Here it is negative acceleration which is -1 into the displacement is x2, okay। so ये होगा सर 30 स्क्वायर 900 माइनस ऑफ 60 स्क्वायर 3600 is equals to -2 into x2, yes sir। so this is students minus of
2700 is equals to minus 2x2. So sir, what is x2? Tell me. x2 will be 1350 meter. Yes sir, 1350 meter. So आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स पोजीशंस क्या क्या होंगे? पोजीशंस आर, यस सर प्लूरल है हम जानते हैं. पोजीशंस आर नंबर 1 सर, जीरो से होते हुए, दिस इज जीरो ना बेटा, बिगिनिंग ऑफ द एंटायर जर्नी इज ए. सो पोजीशंस क्या क्या होंगे सर? जीरो से होते हुए ट्रेन ने कितना ट्रैवल किया? 225 मीटर. ओके, सो पोजीशन क्या होगा सर? जीरो से 225, सो पोजीशन विल बी 225 मीटर. एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, ये जो आपको x2 मिला है, दिस इज फॉर पार्ट ऑफ पार्ट 2. एंड पार्ट 2 स्टार्ट हुआ ऑलरेडी, उसके पहले इन एंटायर पार्ट 1 आपके ट्रेन ने 900 मीटर ट्रैवल कर लिया था. सो सर दिस इज 900 मीटर, एंड देन पार्ट ऑफ पार्ट 2 में ये और इतना चला. सो योर पोजीशन विल बी सर 900 मीटर प्लस x2. सर b से डिस्टेंस आपने काउंट किया ना सर, आपने 60 वेलोसिटी लिए ना. 60 वेलोसिटी कहाँ पे था? पॉइंट b पे था. यस सर, सो a टू b का डिस्टेंस विच इज, टेल मी, 900 मीटर प्लस b टू सम पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे वेलोसिटी 30 हो गया, विच इज 1350 मीटर. सो टोटल पोजीशन क्या हुआ सर जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा? इट इज 900 मीटर प्लस 1350 मीटर. सो दिस इज स्टूडेंट्स 2250 मीटर. दिस इज अ सुपर्ब क्वेश्चन स्टूडेंट्स. एक बार फिर से मैं आपके लिए रिक्वायरमेंट्स रीड कर देता हूँ. फाइंड ए द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन. सर टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने ट्रैवल किया वो है 2700 मीटर. टास्क बी, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन विच इज़ 60 मीटर पर सेकेंड. टास्क सी सर, द पोजीशन, ब्रैकेट में क्या दिया है? एस, दैट इज़ आप पोजीशंस यूज़ कर सकते हैं. एंड नाउ वी ऑल नो ये पोजीशंस है, प्लूरल फॉर्म है, 2 बार कंडीशन सेटिस्फाई होगा सर ये, राइट. द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड. सो वेलोसिटी 30 हुआ कितने बार टोटल? 2 टाइम स्टूडेंट्स. 0 to 30 के टाइम पे, इनफैक्ट 0 से 60 के बीच में एक बार 30 हुआ, एंड देन 60 से 0 के टाइम पे बीच में एक बार 30 हुआ. ओके, सो 0 to 30 हुआ सर एट पोजीशन 225 मीटर, एंड 60 to 30 हुआ एट पोजीशन 900 प्लस 1350 मीटर विच इज़ 2250 मीटर. सो फाइनली आई एम गेटिंग द कंक्लूजन सर, ये जो कंडीशन है टास्क सी में वो 2 पोजीशन पे सेटिस्फाई होगा, एंड दोज 2 पोजीशंस आर 225 मीटर एंड 2250 मीटर. ओके, आपको समझा स्टूडेंट्स? ये बेहतरीन क्वेश्चन है ये. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 नाउ. A bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. Yes sir. Question number 16. So bullet is traveling with a velocity, that is initial velocity u is 16 meter per second, penetrates a tree trunk and comes to rest. So final velocity is 0. This is happening in how much time? ये आपको कैलकुलेट करना है. And before coming to rest, the bullet is traveling a distance equals to s is equals to 0.4 meter. Correct है? Sir, you have to calculate the time taken during the retardation. T is question mark. Okay. Now students, the problem is we don't have retardation. वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे. तो पहले क्या करते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करते हैं विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. हम ढूंढ लेते हैं रिटार्डेशन, एंड देन यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 1 हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, सो यूजिंग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन सर वी कैन से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर प्लस 2a. You don't know the distance traveled by the bullet, you know 0.4 meter. Okay, so that means students 0.8 into a is equals to minus of 16 square which is 256. Correct है sir?
So acceleration A will be definitely negative 256 divided by 0.8. Yes sir, that is equals to negative 2560 divided by 8. Okay sir, that is negative 8 into 3 will give you 24. 1 is carried here. 8 into 2 is 16. 0 as it is. So the acceleration is negative 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज मैं कह सकता हूँ दैट रिटार्डेशन फेस्ड बाय द बुलेट इज 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन. कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, आप भी जानते हैं ये. ए इज नेगेटिव. यस सर, 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट नेक्स्ट? सर हमें तो टाइम ढूंढना है. सो क्या करें? काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 1. Yes sir, V is equals to U plus 80. Sir, what is V? 0. What is U? 60 plus what is A? Minus of 320 into sir time as it is. Yes sir. So 320 into T will be equals to 16. So time will be sir 16 divided by 320. Okay, this is sir 1 over 2 times and then 0, so 1 over 20. This is sir 0.05 seconds. So after this much of time the bullet will come to rest. Time is 0.05 seconds. Simple question based upon application of kinematical equation. Question number 17 now. A bullet going with speed 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates a distance of 5.0 centimeter. Before coming to rest, find the deceleration. Okay sir, so there is a bullet going with speed u, initial velocity u, 350 meter per second. Yes sir, it penetrates a distance s is equals to 5 centimeter before coming to rest. So final velocity is 0 as the bullet is coming to rest. Okay sir, find the deceleration. That means find the retardation faced by the bullet. Okay sir, so A is question mark. As we can observe in this question students, ना टाइम हमें पूछा है ना टाइम हमें दिया है. So this is the biggest hint for solving this type of question. Kinematical equation number 3. फर्स्ट आप बताइए मुझे. V इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. इट कंटेन्स टाइम. सेकेंड, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. दिस ऑल्सो कंटेन्स टाइम. व्हाट अबाउट थर्ड वन? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. इसमें टाइम एब्सेंट है सर. यस सर, सो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. ओके सर, सो व्हाट इज V स्क्वायर सर? 0 स्क्वायर. यस, इज इक्वल्स टू U स्क्वायर 350 square plus 2. What is A? You don't know. What is S? 5 centimeter. That is 0.05 meter. Sir, we are following SI unit. Velocity मीटर पर सेकेंड में है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो मीटर में होना चाहिए. 5 सेंटीमीटर इज 0.05 मीटर. ओके, सो दैट मीन्स 0 इज इक्वल्स टू 350 स्क्वायर plus of 2 into 0.05 is 0.1 multiplied by A sir. Okay, so A should be students negative 350 the whole square divided by 0.1 which is 10 raised to minus 1. So sir, A will be minus of 35 square will be students 1225. दो zeros आ जाएंगे यहाँ पर. Yes sir, into 10 raised to plus 1. Okay, so आपको समझा ना बेटा? This is 10 raised to minus 1 in the denominator. It goes in the numerator. It becomes 10 raised to 1. So A will be equals to students negative, yes, 1.225. I am shifting how many places sir? 1, 2, 3, 4, 5. Already 10 raised to 1 is there. So that means students it will be 10 to the power 6. So acceleration is negative 1.225 into 10 raised to 6 meter per second square.
सो अगर हम एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पे जाते हैं सर, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डी एक्सीलरेशन, फाइंड द डी एक्सीलरेशन, दैट मीन्स फाइंड द रिटार्डेशन। सो बुलेट कितना रिटार्डेशन फेस करेगा सर? 1.225 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जब रिटार्डेशन बोलेंगे, आप जब डी एक्सीलरेशन बोलेंगे तो आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, आप भी ये जानते हैं। सो रिटार्डेशन इज द डी एक्सीलरेशन इज, टेल मी, 1.225 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सिंपल क्वेश्चन। एक ही काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना था, काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 3। ओके, कंप्लीट करो इसे।